السلام علیکم دوستو، میں ہوں ذوالفقار علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیم ٹی وی۔ فرینڈس، یہ ایک کیمیسن کر سے ہی ایک غریب لڑکی کو اس کے جبروں میں پھنسایا ہوا کشتی ایک پرسر راکس کے ساتھ حملہ کیا۔ پانی کے نیچے کوئی دس میں سے ہی حیرت انگیز ویسے حملے ہیں، تو آئیے جانتے ہیں ان کی تفصیل۔ دوستو، نمبر 10 میں پر ہے مہلک، اس پر یقین کریں یا نہیں۔ کالی کے معنی اکثر ہوتا ہے سب کا مہلک سمجھا جاتا ہے۔ شکاریوں جنوبی امریکہ میں زیادہ کے لیے ذمہ دار ہے۔ انسانوں پر حملے بے شمار کیے کہ یہاں تک کہ کالی کیمپین بہت بڑی ہیں اور وہاں ان میں سے کم 6 پرجاتیوں پورے برازیل پر ہیں۔ کھارے پانی سے بہت چھوٹے ہیں لیکن اب بھی اوپر کی طرف ہو سکتے ہیں۔ 10 فٹ لمبا کالی کیمن اب بھی بڑا اور مضبوط ہے۔ انسانی شکار کو لینے کے لیے کافی شائع اسکیس اسٹڈی لے لو۔ جنگل اور ماحولیاتی دوائی مثال کے طور پر 2011 میں واپس آئے جس میں ایک چھوٹے سے بچے کو ایک نے کھایا تھا، اور ان میں سے درندوں میں سے واقعہ جب 7 تھا۔ بچے دور دراز دریا میں نہا رہے تھے۔ برازیل میں ریاستی جنگل میں وہ گہرے ہیں۔ ایک اچھا لیکن بچوں پر حملہ کیا۔ ایک 11 سال کی لڑکی کو پکڑنے کا انتظام۔ اس کے مہلک جو بڑے خوش قسمتی سے ایک ماہی گیر قریب تھا اور باقی بچوں کی مدد حفاظت، لیکن اس کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی۔ چھوٹی لڑکیوں سے انہوں نے کہا کہ اس نے ایک کے ساتھ لگنے والے جانوروں کو دیکھا۔ لڑکی کے منہ میں پھنس گیا لیکن اس نے جلدی اس کا جسم غائب کر دیا۔ یہ پورے دن کے لیے بازیافت نہیں کی گئی تھی جب تک پولیس اور دیگر ممبران کی کمیونٹی کامیابی کے ساتھ ٹریک کر سکتی ہے۔ جانور نیچے مطالعہ اس پر رپورٹ کو تصدیق کی اور تصدیق کیمونوں کا بھی ایسا ہی کلینکل پروفائل ہوتا ہے۔ شارک والوں کے ممکن طور پر بڑے زخموں کی وجہ سے خون میں کمی اور ثانوی بیکٹیریل انفیکشن ان کا استعمال کرتے ہوئے آہستہ آہستہ چپکے رہیں گے۔ پانی میں پھنسے بچوں کی مدد اسے اور انہیں باہر نکالنے کے لیے مطالعہ کا کہنا ہے کہ ایک میں سے ایک حاملہ یہ جانور ہیں۔ تقریباً ہمیشہ مہلک، خاص طور پر جب یہ ایک بالغ نمونہ کیونکہ یہ اوسط لمبائی 4 میٹر ہے اور 70 سے 80 دانتوں کے لیے موزون ہے، اس کے شکار پر دبے ہوئے جبڑے کی قوت میں اضافہ کرتے ہیں۔ شکار کی طرف سے کوئی رد عمل جبکہ حملوں میں یہ نادار لڑکی بہت کم ہوئی تھی۔ نمبر 9 مقصد کویٹ پرکاٹا پیٹرسن سب سے زیادہ پاگل ہے دنیا میں جنگلی حیات کے ماہر۔ صرف پچھلے سال یہ لڑکا اس میں گیا تھا۔ حیرت انگیز جنگل اور جان بوجھ کر گیا تھا۔ گولیوں کی چینٹیوں نے حملہ کیا۔ اگر آپ کو پہلے ہی گولی نہیں معلوم تھی، چینٹیوں کے پاس سب سے زیادہ تکلیف دہ ڈنک ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی کیڑے تکلیف درد پہنچائے جاری رہتے ہیں۔ جن لوگوں نے ان پر حملہ کیا بے رحم کیڑوں نے بیان کیا، ایک کے ساتھ گولی مار ہونے کے برابر کے طور پر درد ہوا۔ اسی وجہ سے جہاں گولی چینٹیوں نے اسے کمائی تھی، پر تشدد نام اور مکمل طور پر جاننے کے باوجود کہ کسی بھی چینٹی خطرناک حد تک خطرناک ہے۔ کویٹ پیٹرسن جنگل میں گیا اور خود کو کاٹنے ہوئے فلمایا اور پھر زمین پر گرنے اور زہر کے درد میں گھوم رہے ہیں۔ اس کے خون کو باہوں میں پھنسایا۔ واضح طور پر ایک متعلق پاگل اور 29 سالہ کی عمر میں وہ پہلے ہی درجنوں ویڈیوز بنا چکا ہے۔ دوسرے خوابوں سے کاٹنا مخلوق لیکن یقینی طور پر تھا۔ خاص طور پر غور کیا کہ ایک گولی چینٹی ایک نیوروٹوکسن کو زہر پیدا کر سکتا ہے۔ یہ مکھی سے 30 گنا زیادہ تکلیف دہ ہے۔ یہ یقینی طور پر ایک حملہ ہے۔ عام آدمی اپنی مرضی سے سائن اپ کرتا ہے۔ مقصد براہ کرم مجھے نیچے تبصرے میں بتائیں، اور اس سے پہلے کہ ہم جاری رکھیں، یہ بس میں چاہتا ہوں کہ چینل چیک کرنے کے لیے کہ شکریہ کہنا ہے۔ اسے سبسکرائب کر کے بھولیں مت۔ نمبر 8 پر کم از کم 70 افراد پرانا گوشت کھا رہے ہیں۔ ایک خوفناک واقعے کے دوران ہی بے دردی سے زخمی ہو گئے تھے۔ ارجنٹینا میں ایک ندی میں پرانا حملہ ہوا۔ 2013 میں ہمیشہ کے لیے نظر ختم پرانا خطرناک نہیں ہے، پرانا حقیقت میں خطرناک ہیں۔ جانوروں اور نیچے لینے کے لیے قابل ہیں۔ لوگوں کے ساتھ ان کے بڑے گروپ ویمپائر جیسے دانت۔ یہ حملہ جنگل میں گہرا ہوا بینوس آئرس سے تقریباً 186 میل دور تھا۔
ख़ासतौर पर गर्म दिन जब छुट्टी पर लोगों ने ठंडा होने के लिए फैसला किया। और ये तब था जब तबाही आ गई। नौजवान लड़के ने अपनी उंगली का एक हिस्सा खो दिया। दर्जनों तैराक जख्मी हो गए, उनके टखने और हाथ वैसे हमलों की हैसियत से बयान किया गया। छोटे कुत्तों का शायद बड़े और तेज़ दांत और एक बहुत कुछ के साथ तवानी की, और ये भी पहले नहीं था। इस वक्त एक बड़े पैमाने पर हमला हुआ। भूखे पुराहनू ने 2008 में 40 के दौरान तैराकियों को चोट लगी थी। इसी तरह का हमला और फिर 70 के बाद सिर्फ एक माह लोग इन बातों लोगों की तरफ से भरे हुए थे। मछली डेली मेल ने एक और हमले की इस्तला दी, जिसकी वजह से 10 अफराद को भी इसी तरह का सामना करना पड़ा। पिराना काटने से दरमियानी पैर और मौत बहुत कम होती हैं। संगीन नुकसान और आपको बेहतर उम्मीदें। जब ऐसा होता है तो आप तनहा होते हैं। नंबर 7 वैसी शार्क का हमला बदतरीन जानवरों के हमले नहीं, कुछ ब्राज़ीली बारिशों में होता है। इनमें से शहर से भी वाक़ होता है। ब्राज़ील हालिया खौफनाक वाक़े की तरह जब शेर शार्क ने हमला किया, उसकी टांग को चीरकर 18 साल का बच्चा और उसके निर्देशों को ये एक कथा में इंतहाई वहशाना शार्क के हमले। हालिया में मुरे और गरीब बच्चा असल में इसके कब्र की वजह से इंतकाल हो गया था। नौजवान को फ़ौरन साथ ले जाया गया एम्बुलेंस करीबी अस्पताल में, लेकिन उसके रास्ते में 2 दिल का दौरा पड़ा और वहाँ फिर उसे 3 घंटे से गुजरना पड़ा। ऑपरेशन जिसमें डॉक्टरों ने काट दिया उसके बाएं टांग और रगों को उससे जोड़ने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से वो वैसे भी सिर्फ एक ही मौत हो गया कुछ घंटे बाद। डॉक्टर के मुताबिक अस्पताल लड़का खो गया, बहुत ज़्यादा खून से की वजह से। 6 नंबर पर एनाकोंडा के दहशतगर्द में एक एनाकोंडा पर कब्जा करने की कोशिश करते हुए वेनेजुएला की एक टीम का जंगल साइंसदान आए हमला के तहत बड़ा सांप नहीं किया। खींचने की कोशिश करने वाले साइंसदानों की तारीफ करें। ये दरिया से बाहर जहां अभी इसका अपना ही जहन था, कारोबार में सांप ने उन पर हमला किया जब वो अपनी कश्ती पर थे, लेकिन ये जब यकीन तौर पर कुछ नुकसान हुआ। 3 साइंसदान पानी में लिपक गए और उसे पकड़ लिया। एनाकोंडा काफ़ी ज़्यादा था, आसानी से एक को निगल सकता था। मर्द अगर ये दिया गया था मौका, लेकिन मर्द जल्दी थे और क्रिकिंग को पकड़ लिया। सांप लेकिन इससे बाज नहीं आए एनाकोंडा में से किसी एक पर काटने से। साइंसदानों के हाथ एक ऐसी हरकत जिसका मतलब आसानी से खो जाना है। कुछ उंगलियां या उससे भी पूरी पिन रेंज या एनाकोंडा से काटने वाला नहीं हो सकता है ज़ाहिर, लेकिन गौर किस तरह इसके दांत बहुत बड़े हैं, अब भूखे हो सकते हैं। इस खास मामले में महलिक एनाकोंडा अपनी फीलिंग हासिल करने में कामयाब होगा, बिल्कुल साइंसदान की उंगली से, और ये सिर्फ उसकी शुरुआत थी। तकलीफ के बाद अपना हाथ निकालना पड़ा। सांप के मुंह से जो आसान है, एनाकोंडा के फेंस का रुख अंदर की तरफ होता है, जिसका मतलब बोलूँ उसके हाथ बाहर निकालने की कोशिश करना। सांप का मुंह सिर्फ उसको चीरेगा। इससे भी बदतर हाथ दरअसल उसे अपना हाथ गहरा धकेलना पड़ा। खुद को छानने के लिए सांप के मुंह में उसके मोड़े हुए फेनिंग से वो भाग गया। इस बार उसकी ज़िंदगी, लेकिन सिर्फ 5वीं किस्मत की वजह से, महलिक तर सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर दरअसल हैरत अंगेज़ जंगल है। 2020 में BBC में इंसान वापस आया के अंधुना कत्ल के इत्तला दी। ब्राज़ील का एहलकार जो तनाई पर ठोकर खाकर खड़ा हुआ था, देसी कबीले घने गहरे ब्राज़ील के जंगल और एक अवलो की जरिए कत्ल किया जा रहा था। रैली फ्रांस का इसने निगरानी कर रहा था। इसकी मुलाजमत के हिस्से के तौर पर कबीला ब्राज़ील की हुकूमत के लिए काम कर रहे हैं। देसी एजेंसी जब उन्होंने उस पर हमला किया और हमला कर दिया, उसे अपने कदीम तीरों से, क्योंकि देसी ग्रुप ऐसा ही था, बाकी दुनिया से अलग थलग। इनके पास ये जानने के लिए कोई तरीका नहीं था कि आया रैली है दोस्त या दुश्मन। जब वो करीब आया और उसी तरह उन्होंने जानवरों को खौफजदा किया। जब वो हमला करते आमतौर पर करते हैं, यानी शायद उनकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कब रैली और उसकी पुलिस की टीम पहुंच गई, जैसे ग्रुप ने उन पर फायरिंग कर दी। सब ने पनाह लेने की कोशिश की करीबी गाड़ी के पीछे, लेकिन रैली थे थोड़ा बहुत सस्त। उसने सीधा सीने से तीर लिया और वो जाए वक़्त पर ही दम तोड़ गया। जैसा कि अलग थलग इंसानों के इस कबीले का वो
कटेरू नदी के नाम से जाने जाते हैं। अलग थलग ग्रुप कबीला की वजह से गहरी परेशानी में है। करीब आने वाले रेंचर और लाग इनका इलाका इन्हें बिल्कुल कम वीरान बनाना और गालिबन ये आखिरी हमला नहीं होगा। हम आने वाले बरसों में इस कबीले के ज़रिए देखते हैं तजावज़ करने वाले बाहर वालों पर बंदरों के ज़रिए एक चली नंबर 4 को बचाया गया। सियाहों का नाम मैकमुल रसूल हाल ही में सिर्फ बोलीविया में कैंपिंग करने गए थे। 9 दिन गुजारे खोए हुए हैरत अंगेज जो एक बन गया। इसमें बारिश के सबसे ज़्यादा नाकाबिल यकीन बका की कहानियाँ। यह लड़का रात को अपने खीमे से बाहर गया था और खो गया और फिर यूँ हुआ 9 दिन तक काटा और हमला कीड़े से उसके दिमाग को जहर देता है। इनका जहर वो लसीतों तौर पर वजूद से पागल हो गया था। चिंटू मच्छरों ने हमला किया और हर तरह की दूसरी चीज़ें जो रेंगती हैं और रेंगिन, लेकिन जो वाक़ई नाकाबिल यकीन ये खुद मैकुल के मुताबिक सिर्फ इस वजह से कि वो ज़िंदा रहा, इसलिए कि बंदरों के एक ग्रोह ने उसकी रहनुमाई की। जंगल से वापसी अपने कैंप की तरफ बढ़ा। हर एक को दरख्तों से फल चुनना उसके खाने के लिए। दिन जब कीड़े उस पर हमला कर रहे थे, नीचे से बंदर उसकी मदद कर रहे थे। ताहम हर शख्स इसकी कहानी पर यकीन नहीं करता। वो इतना पानी के कमी का शिकार हो चुका है कि ग़िज़ात का शिकार और जहर आलूदा कीड़े के तमाम डंक की वजह से बंदर को पूरे कारोबार को फ़रेब दिया। फिर वाक़ई में एक ग्रुप हो सकता है और सलामती में उसकी मदद करें। जो भी मामला ठंडा हो सकता है उसने पूरा कर दिया। बहाली और एक बहुत के साथ घर वापस आए। अपने दोस्तों को बताने के लिए दिलचस्प तजुर्बा। एक जहरीले सांप एड स्टाफोर्ड बरतानी फ़ौज का अफसर और तजर्बाकार एक्सप्लोर पहले शख्स बन गया। अमेज़न नदी के पूरी लंबाई चलते हैं। 2010 में खुद आदमी के मुताबिक कम से कम 400 सांप का सामना करना पड़ा और कहानी सुनाने के लिए जीता था कि इसका शो है। दरियाफ्त चलने पर बाएं 4 को मुर्दा कहा जाता है, जहाँ से खतरनाक हालत में गिरा दिया गया था। एक खास सांप जो इससे मिला था वो एक था। अमेज़न पटवा पर सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में जहरीला सांप है। यह सांप अपने शिकारों को एक के साथ इंजेक्शन देता है। हेमोटोक्सिक जहर के किस्म जो इंसान को उनसे खून बहा सकता है, उनके नाखून और बाल, यहाँ तक कि उनकी आँखों से भी। वो कहता है जब भी आपको याद रखना ज़रूरी है, कुछ खतरनाक नहीं है। और जब उसने अपना सारा एडवेंचर संभाला बगैर किसी सांप के हमले के और एक इतना खुशकिस्मत नहीं था। एक 2007 में केस रिपोर्ट हुआ जब एक पोर्ट्री शख्स थोड़ा सा ठीक था। उसके दाएं एड़ी के ऊपर एक दागदार जंगल के पटवाई पर होने के बाद किस रिपोर्ट के मुताबिक आदमी ने थोड़ा सा फासला तय किया और मदद हासिल करने के लिए ब्राज़ील के जंगल के ज़रिए बालाकर उसे करीब तल में लिया गया। मुल्क के शिमाल में अस्पताल और अगरचे उसे बहुत तकलीफ हुई और सोजन वो खुदा के ज़रिए रहता था और पटवाई पर होने के बावजूद ख़तरनाक। ये वाक़तन पहला था किसी के होने की तस्दीक शुदा है। दोस्तों, नंबर 2 महल के अमेज़न मछली का हमला 1981 में एक बदतरीन समुद्री में एक आफत की तारीख में सामने आए। हैरत अंगेज जिसके नतीजे में ज़िंदगी का ज़बरदस्त नुकसान हुआ जब एक नदी कश्ती ने सोब्रल सेंटोस का नाम लिया, एक पुरअसरार अफरीत में हमला करके हिलाक कर दिया। एक अंदाजे के मुताबिक पानी में 320 अफराद थे। किसी ने भी दरिंदे की शिनाख्त नहीं की। इस हमले का जिम्मेदार जब तक के इंतहाई एंगुलर जेरेमी वेट से न हो हेटचो नदी राक्षसों में चला गया तहकीकात के लिए जंगल। हैरत अंगेज़ बंदरगाह वाले शहर का सफ़र करता ब्राज़ील में, जहाँ मकामी लोगों का यकीन है कि इंसान खाने वाले पुरानासास इसके ज़िम्मेदार थे। 1981 में महल का हमला। ताहम इसके मुकम्मल होने के बाद तहकीकात जेरेमी वेड पुरअज़म है। यह मुकम्मल तौर पर एक गुरु था। इसने नज़रिया किया कि बड़े सख्तदम के कैप्टस जद्दोजहद करने वाले मुतासिरों को खींच लिया पानी के नीचे और अपने बड़े और ताकतवर जबड़ों के साथ उन्हें डूबना। और एक बार लोग मर रहे थे पानी में पिराना और बाकी गोश्तखोर मछली के अलावा उनके जिस्म, यहाँ तक कि उनके हड्डियों के सिवा कुछ बाकी ना रहा। नंबर 1 जागवार का मुकाबला। जागवार होता है इंतहाई मही जानवर, तकरीबन कोई नहीं। दरअसल इससे हमले हो जाते हैं। अमेज़न के जंगल में एक जागवार
جانور بہت بڑے ہیں، بہت چپکے اور جاننے کے لیے بہت ہوشیار، انسانوں کے قریب کہیں بھی۔ پھر وہ جب جوہانسبرگ پھنس گیا واپس ہماپن جنگل میں 3 ہفتے 1981 میں وہ افسانوی کے سامنے آیا۔ جنگلی بلی یوسی کی کہانی کافی پیچیدہ ہے، لیکن بنیادی طور پر اس نے سفر کیا کچھ کے ساتھ بولیویا کا حیرت انگیز حصہ ان سے الگ ہو گیا اور پھر وہ مل گیا۔ اس کے بعد یوسی زہریلے پانی میں ڈوبنے سے بچ گیا۔ سانپ کے حملے، بھوک اور ایک مختصر واقعہ، اس کی بقا کو ایک معجزہ کہا گیا، یہاں تک کہ کتابیں اور فلمیں بھی ہو چکی ہیں۔ اس کی شدید مہم جوئی کے بارے میں بنایا خوفناک لمحوں میں سے ایک اس کے 3 ہفتے جنگل میں کھو گئے۔ اس وقت تھا جب یوسی نے جگوار دیکھا، دیر سے براہ راست اس کے سامنے کھڑا، رات کو غریب فاقہ کشی پر جھونکنے کے لیے تیار۔ اور یوسی ضرور ہوتا اگر اس نے یہ سوچا ہی تھا تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور اس پر جگوار جانور پر فائرنگ کر دی اور یوسی کو جدوجہد کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ آخرکار اسے بچایا۔ دوست جو اس کے تلاش میں آئے تھے، شکریہ ہے آپ کبھی آئے ہیں، ان میں سے کسی سے بھی آمنے سامنے تبصرے میں، اور پھر مجھے بتائیں براہ کرم۔ تو دوستو، آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی؟ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ویڈیوز